ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوشحال سلطنت میں ویرا نامی بہت خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ کیونکہ وہ بچپن سے نازوں سے پلی تھی تو بہت مغرور تھی۔ وہ ہمیشہ نچلے طبقے کے لوگوں کو حقارت سے دیکھتی اور برا سلوک کرتی۔ تم غریب لوگ میری آنکھوں میں کھٹکتے ہو، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جب شہزادی ویرا شادی کی عمر کو پہنچی، بادشاہ نے حکم دیا یہ خبر سب کو دی جائے۔ اس کے بعد قریبی سلطنتوں کے شہزادے اور امیر زادے سب شہزادی سے ملنے آئے، لیکن ویرا ان سے بھی حقارت سے پیش آئی۔ یہ صرف معمولی شہزادے اور رئیس ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف ایک خوبصورت امیر شہزادے سے شادی کروں گی جس کے پاس اڑنے والی سواری ہو، جن کے پاس نہیں، دور ہو جائیں میری نظروں سے۔ اس چونکانے والی خواہش کے ساتھ ویرا نے سب بہترین شہزادوں اور رئیسوں کو ٹھکرا دیا۔ وہ صرف اس کا بہانہ تھا کیونکہ وہ سب کو حقیر جانتی تھی۔ اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرے قابل ہو۔ کس کے پاس ہوگی جادوئی اڑنے والی سواری؟ مجھے صرف اپنے بابا کا تخت چاہیے تاکہ ہمیشہ خوشی سے رہوں۔ شہزادی ویرا کی اتنی بری شخصیت دیکھ کر بادشاہ بہت اداس اور اس کے لیے فکر مند ہوا۔ لیکن ایک شام ایک خوبصورت امیر آدمی بادشاہ اور شہزادی سے ملنے آیا۔ وہ ایک اصلی اڑنے والی سواری پر آیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادی، میں بہت دور کے ملک کا شہزادہ ہوں۔ خوبصورت شہزادی ویرا کا سن کر مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے اتنی دور سے آنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اور یہ ہے اڑنے والی سواری، جیسی شہزادی کو چاہیے۔ مجھے اس میں اڑتے تو دیکھا ہوگا ہے نا، مجھے دوبارہ دکھانا تو نہیں پڑے گا۔ حیران کن، واقعی دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس اڑنے والی گاڑی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ عجیب شہزادے نے ویرا کی ساری شرطیں پوری کر دی، انکار کا موقع نہ دیا، تو ویرا کو قبول کرنا پڑا۔ بہت خوب، تو میری بیٹی کو آخر صحیح آدمی مل گیا۔ میرا اعلان ہے کہ جلد شادی کی تقریب ہوگی اور شہزادی اپنے خاوند کے گھر جائے گی۔ شہزادی سے شادی میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن ایک اور بات، شادی کے دن میں شہزادی کو رات میں اپنی سلطنت لے جاؤں گا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میری سلطنت میں ایک روایت ہے، دلہن آدھی رات کو محل پہنچنی چاہیے، تو امید ہے آپ مجھے سمجھیں گے۔ عجیب روایت سے حیران ویرا نے حامی بھر لی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس سلطنت میں قیام کے دوران شہزادہ اپنے کمرے میں ہی رہتا، دن میں باہر نہ نکلتا، صرف جب سورج ڈھل جاتا تو باہر آتا۔ شادی کا دن آ گیا اور شہزادہ نمودار ہوا جیسے ہی سورج ڈھل گیا۔ انتظار کے لیے معذرت، اب میں ویرا کو اپنی سلطنت واپس لے جاؤں گا۔ جلد ہی ویرا نے اپنے بابا کو اداسی سے الوداع کہا، عیش والی سواری پر بیٹھی اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کی سلطنت چل پڑی۔ راستے میں انہیں ایک پراسرار دھندلے جنگل سے گزرنا تھا۔ تب ویرا کو ڈر لگا۔ آخر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ جنگل اتنا تاریک اور خوفناک کیوں ہے؟ شہزادہ شرارت سے مسکرایا اور شیطان بن گیا۔ یہ میرے شیطانی محل کا راستہ ہے۔ صرف ایک تبدیلی سے میں نے خوبصورت شہزادی ویرا کو دھوکہ دے کر اپنی بیوی بنا لیا۔ بہت ہی آسان تھا۔ شیطان کی اصل شکل دیکھ کر ویرا نے دہشت سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ جاگی، اس نے خود کو ایک تاریک خوفناک محل میں پایا جہاں جن پہرا دے رہے تھے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ تم خوفناک شیطان، مجھے مت چھونا، بابا مجھے بچاؤ۔ بیکار میری مخالفت نہ کرو، تمہارا باپ یہاں نہیں آ سکتا، یہ میرا محل ہے اور تمہارا نیا گھر بھی۔ تمہیں میری ہر بات سننی چاہیے ورنہ مت پچھتانا، میرا خادم تمہارے لیے کھانا لائے گا۔ پھر شیطان خوشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس موقع پر ویرا کو ان شرطوں پر افسوس ہوا جو اس نے خود اپنے شوہر کے لیے رکھی تھیں۔ میں نے سب کو حقارت سے دیکھا، ایسی شرط رکھی جو کسی کے پاس نہیں۔ اس شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا مجھے یہاں لانے کے لیے۔ کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟
उसी वक्त एक नौकर उसके लिए खाना लेकर आया। ये जॉर्डन था, एक गरीब बदसूरत आम आदमी। शहजादी वेरा, पुरसकून हो जाओ, ताकत के लिए कुछ खा लो। तो कौन हो तुम? क्या तुम इन जिनों की तरह नहीं? मेरा नाम जॉर्डन है। मैं एक इंसान हूँ, गरीब आदमी। मुझे लंबे अरसे तक खिदमत के लिए शैतान यहाँ लाया। एक गरीब बदसूरत आम आदमी शैतान की खिदमत के लिए, एक और नाकाबिल एतबार शख्स। तुम ये खाना छोड़ दो और बाहर निकल जाओ। फिर खुश रहो शहजादी, मुझे बाहर जाकर शैतान के लिए लकड़ियाँ लानी हैं। रुको, क्या तुमने ये कहा तुम्हें शैतान इस महल से निकलने की इजाजत देता है? तो तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। रोजाना शाम को शैतान मुझे जबरदस्ती जंगल भेजता है उसके लिए लकड़ियाँ लाने को। मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की, दिन और रात, लेकिन जंगल में खो जाता और जिन मुझे पकड़ लेते। मैंने शैतान बादशाह के बहुत जुल्म बर्दाश्त किए और उसके शैतानी सिपाहियों के कोड़े। अगर मुझे रास्ता पता होता तो कब का यहाँ से निकल गया होता। लेकिन अगर तुम खत भेजना चाहती हो, मैं कबूतर के जरिए भेजने का खतरा ले सकता हूँ। तो फिर बराहे करम ये खत मेरे बाबा को भेज दो। वेरा बहुत खुश थी। इसने जॉर्डन से अपने बाबा को खत भेजने का कहा। जॉर्डन ने हिम्मत से कबूल किया। वो खत लेकर चला गया। जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया, जब कोई आसपास न था, इसने कबूतर के लिए सीटी बजाई खत भेजने के लिए। लेकिन जैसे ही जॉर्डन उसकी टांग में खत फंसाने वाला था, शैतान ने उसे रोक दिया। तुम बहुत बहादुर हो। मेरे असूल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? वो खत कहाँ भेज रहे हो? बादशाह के लिए खत? मैं यकीन नहीं करता तुम्हारी तरह का आम आदमी उसे खत लिखेगा। हाँ, मैं जानता हूँ ये किसने लिखा है। शैतान जॉर्डन को घसीटकर वेरा के पास ले गया और उससे पूछगिछ की। अब मुझे सच बताओ, किसने लिखा ये खत? या इसने? शहजादी वेरा, पिछली बार तुमने कोशिश की तो मार खाई। मैं नहीं मानता कि दोबारा हिम्मत की तुमने। ओ नहीं, मैं खतरे में आ जाऊंगी। जॉर्डन मेरा बता देगा, शैतान मुझे सजा देगा। मैंने कैसे एक आम आदमी पे भरोसा किया? शैतान, मैंने ही ये खत लिखा। वेरा को इल्जाम ना दो, उसने नहीं किया। क्या? इसने मेरी मदद क्यों की? नामुमकिन। तो मैं गलत थी? मैं तुम्हारे जराइम से गुस्से में था, तो मैंने छुपकर बादशाह को इतला दी कि तुमने उसकी बेटी को अगवा किया। पर अफसोस, इस आदमी को कोड़े मारो। और शैतानी जिन्हों ने जॉर्डन को बहुत बुरी तरह मारा। उनके जाने के बाद वेरा फौरन आई। जॉर्डन, तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं ठीक हूँ। मैं शहजादी को उन शैतानों के हाथ से चोट नहीं पहुँचने दे सकता। वेरा ने आराम से जॉर्डन के जख्म पर पट्टी लगाई। दोनों के एक दूसरे के लिए जज्बात बढ़ने लगे। शहजादी को बहादुर गरीब लड़के से प्यार हो गया जो उसे बचाने के लिए तैयार था। जॉर्डन, ये सब मेरा कसूर है। मैंने अपनी खुदगर्जी और गरूर से सबको परेशान किया और शैतान ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर लिया। अब तुम्हें भी मेरे लिए तकलीफ पहुँच रही है। जॉर्डन ने वेरा का हाथ थामा। अचानक जॉर्डन से एक तारीक नगीना बाहर आ गिरा। ये कैसा नगीना है? मैंने ये शैतान के लिए लकड़ियाँ जमा करते हुए एक गार से उठाया था, लेकिन नहीं मालूम था इससे क्या करूं, तो हमेशा तब से अपने साथ रखा। वेरा के हाथ में तारीक नगीने ने अचानक इर्द गिर्द मोमबत्तियों से रोशनी जज़ब की। जादुई रोशनी दी, फिर मध्यम हो गया, उन्हें हैरान करते हुए। मुझे इस नगीने का असर समझ आ गया। ये इर्द गिर्द की रोशनी जज़ब करके अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि इसने ज्यादा रोशनी जज़ब नहीं की, इसलिए इतना मध्यम है। रोशनी? तुमने कहा तो मुझे याद आया, शैतान की कमजोरी ही सूरज की रोशनी है, इसलिए वो शाम से पहले बाहर जाने की जुर्रत नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही। जब मेरे महल आया तो ऐसे ही था। फिर हमारे पास यहाँ से भागने का एक और मौका है। वेरा और जॉर्डन ने खुशी से मशवरा करके भागने का मंसूबा बनाया। जॉर्डन सुबह सुबह चुपके से बाहर निकला और नगीने को दरख्त की ऊंची टहनी पर रख दिया कि वो सूरज की रोशनी जज्ब करे। और फिर नगीने ने जल्दी सूरज की रोशनी जज्ब की और रोशन से रोशन होता गया। ये देखते हुए कि नगीने ने काफी रोशनी जमा कर ली थी, उस रात वेरा और जॉर्डन ने साथ भागने का फिर फैसला किया। जंगल में जॉर्डन ने दरख्त से नगीना उठाया, अपने जिस्म में छुपाया और वेरा को साथ लेकर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। लगता है हम दोबारा गुम हो गए। हम वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। ये कैसे? इस ड्रॉनी जंगल ने हमें यहाँ से भागने से रोका है।
उसी वक्त शैतान को जॉर्डन और वेरा के फरार होने का पता चला। क्या इन दोनों ने भागने की जुर्रत की? उनको माफ करना नामुमकिन है। मैं खुद उनका पीछा करूंगा। शैतानी जादुओं के साथ उसने बआसानी उनका सुराग लगा लिया और दोनों तक पहुंच गया, जो उस वक्त जंगल में गुमे हुए थे। मैं भी देखता हूँ मुझसे और इस जंगल से कैसे फरार होते हो। जॉर्डन सामने आ गया और वेरा को शैतान के मंत्रों से बचाया। अचानक उसके जिस्म से रोशनी हुई। शैतान का जादुई हमला वापस हो गया। जॉर्डन, तुम ठीक हो? अजीब है, मुझे शैतान का जादुई वार लगा है ना? उस वक्त नगीना जॉर्डन के जिस्म से नीचे गिरा। वेरा ने उसे हैरानी से उठाया और समझ गई। अच्छा, शैतान का वार तुम्हारे जिस्म में नगीने से टकराया तो वापस शैतान की तरफ हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू उल्टा क्यों पड़ रहा है? रोशनी के नगीने, हमें इस शैतान से छुटकारा दिलाओ। मैं जानती हूँ तुम में इसकी ताकत है। जैसे ही उसने ये बोला, जादुई नगीने से सूरज की रोशनी की शुआ जोरदार तरीके से फूटी और सीधा शैतान की तरफ चमकी। सूरज की रोशनी नहीं, नामुमकिन। ये तो रात के अंधेरे में है। फिर शैतान उस रोशनी में गायब हो गया। शैतान हार चुका था तो जंगल का नजारा बदल गया। असल में वो एक नजर का धोखा था जो शैतान ने बनाया लोगों के लिए जंगल से भागना नामुमकिन बनाने के लिए। इस वजह से जंगल में शैतानी महल भी गायब हो गया। जिनको शैतान ने कैद कर रखा था सब आजाद हो गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेरा, लेकिन मैं एक गरीब बदसूरत आम आदमी हूँ, शहजादा नहीं। ना मेरे पास उड़ने वाली गाड़ी है जैसी तुम्हें चाहिए। अब मुझे वो चीजें नहीं चाहिए। तुम जो भी हो सब इज्जत के काबिल हैं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिसे प्यार करती हूँ, जिसने मुझे महफूज रखा। फिर उनकी शादी धूमधाम से महल में हुई। बादशाह खुश था कि उसकी बेटी समझ गई जो उसे चाहिए था। वो हमेशा खुशी से रहने लगे।